the topic to be discussed is MSME, and we have requested Anirudh Tiwari ji to take a 360-degree view of MSME, right from registration to the various benefits available, whether any government grants are available in case of certain MSMEs, what are the various types of registrations, and whether any finances are available, how to charge appropriate fees from the clients regarding this. He has been dealing with MSMEs on quite a comprehensive scale. To introduce the speaker, he has been with EY. He is a Commerce Honours graduate, an associate member of Institute of Chartered Accountants of India. He has qualified DISA exam and FAFD, and he is an anti-money laundering specialist as well. He is also founder of Global Entrepreneurs and Professionals Association, GEPA. So with this, it is all over to Anirudh Tiwari ji. The duration of the session is from 4 p.m. to 6 p.m. and we would request the speaker to share the PPTs also at the end of the seminar so that it can be uploaded on our website. So we welcome Anirudh Tiwari ji in our study circle. Thank you so much. This study circle we started in 2003 and we have been continually serving in the profession since 2003. We have got our own website also on which we upload various PPTs on time to time. So with this, it's all over to you. Anirudh ji, please. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me the opportunity to interact with the senior members. I would say since the study circle has been formed in 2003, so most of the senior members has also be part of your study circle along with the young and dynamic members. So thank you so much. R.K. Gupta sir, Bharadwaj ji, thank you so much for giving me the opportunity to interact with the CF fraternity at your study circle. And as we all know, MSME. Sir, can we use the chat box also? Can I ask the questions? Yes, sure. And everybody has... and even the participants, they usually take resort to this chat box only. Okay. They communicate through chat box. So you can have a constant look at the chat box in case there are any questions. Okay, that's fine then. So let us talk about the MSME. What actually MSME is. We have seen since 13th of May 2020 when our Pradhan Mantri ji, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, on 12th of May come on dice and they said Atmanirbhar Bharat. So उन्होंने एक शंखनाद किया आत्मनिर्भर भारत का. उसके बाद से एक लोगों में होड़ सी है कि ये आत्मनिर्भर भारत क्या है. We are just आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट इंडिया. एंड एक स्लोगन उन्होंने दिया था वोकल फॉर लोकल. तो नाउ दिस इज कमिंग टू द एवरीबॉडी इज हियर. सब क्या सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो नया हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था. So we are going to discuss each and every aspects of MSME and Atmanirbhar Bharat. I would say each and everything क्योंकि काफी comprehensive जैसा कि सर ने बोला था कि A to Z चीजें कवर करनी है. Though I'm not the expert, but still I will try my best to cover lot many things which will be helpful for the professional to grow up their practice also if they want to grow up in the field of MSME. So MSME या सबसे पहले हम ये समझते हैं कि MSME है क्या, फुल फॉर्म क्या होता है. तो सर सबसे पहले फुल फॉर्म आप समझो माइक्रो स्मॉल and medium enterprises, MSME, as we have seen. So MSME typically this is the very starting age. You can say this is the first stage of micro unit when any business got started, or in case investment, when investment come into the business in the larger stage, then it become the small, and then after more investment and more growth in the business, it become the medium enterprises. So this cycle always run. If you talk about myself, if I'm the first generation entrepreneur and I have started my own venture very recently, so I would be called as micro enterprises. And after the years when I will be getting some kind of fund and the profits out of my business,
and when I will run it on the continuous basis, और मैं कुछ और प्रॉफिट जैसे कमाऊंगा और बिजनेस मेरा बढ़ेगा, तो वैसे ही इसका स्केल आगे बढ़ता जाएगा. So as a chartered accountant can nurture the startups, MSME, because they can play a very important role from very start to the end. Any business will be started with a legal entity. कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि सर उस बिजनेस को एज अ कंपनी में स्टार्ट करूं, एज LLP स्टार्ट करूं, एज अ प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करूं. व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, व्हाट शुड बी द मोड, and who is the person who can guide a businessman, because usually businessmen just do the business, they don't want to go in the hiccups of the legality. जो लीगल एस्पेक्ट है उसमें वो नहीं जाना चाहते थे. जस्ट कॉल देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट कि सर मेरे को ये बिजनेस करना है, दिस इज माय प्लान, नाउ टेल मी हाउ टू गो विद. लाइक गुप्ता जी हैं, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक बिजनेस करने के लिए उनका कोई क्लाइंट है, उसने स्टार्ट करना है, तो गुप्ता जी उसको गाइड करेंगे कि बेटा तू पहले प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट कर, उसमें कंप्लायंसेस कम होंगी, या फिर तेरे को पार्टनरशिप में स्टार्ट करना है, या फिर बड़े स्केल में तुझे बिजनेस करना है तो गो विद दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. So what should be the mode of my business? This is the very first stage. Once my registration and incorporation things will be done, then we'll move on the another part like funding. कि अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो फंडिंग कहाँ से आएगी? क्या मेरे जो रॉ मटेरियल, जो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है, किसको मेरे को बेचना है, who are the competitor who are already existed in the market, who have lot of exposure in the market, everybody is known to them, but I'm the new, then how I will proceed, मैं कैसे शुरू करूंगा? ये फिर उसकी सेकंड स्टेज आती है कि उसे अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, फंडिंग स्टार्ट करनी है, देन उससे नॉर्मल अपना बिजनेस शुरू करना है. फिर कंप्लायंसेस आएंगी, रेगुलर चेकअप होंगे उसके, हेल्थ चेकअप जिसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस का हेल्थ चेकअप, लाइक उसका वैल्यूएशन ठीक चल रहा है, फिर उसकी जो जीएसटी कंप्लायंसेस है वो टाइमली हो रही है नहीं, फैक्ट्री लॉज की जो कंप्लायंसेस होती है, एनवायरमेंटल लॉज की कंप्लायंसेस, लेबर लॉज की कंप्लायंसेस वो पूरे हो नहीं रहे. फिर अगर मेरे को एमएसएमई के बेनिफिट चाहिए तो एमएसएमई में मुझे कैसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा. तो ये सारी चीजों की एडवाइजरी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर और कोई नहीं दे सकता. सो यू कैन सी व्हाट आर द एक्सपोजर, हाउ मच वी कैन गेट from this field MSME. अब आत्मनिर्भर भारत, अब MSME की तो हमने बात की कि MSME में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का तो रोल सर बहुत ज्यादा है. अब रोल को थोड़ा सा और आगे समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी जी ने दिखाया था, क्या एक्चुअली बिजनेसमैन को कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और इसका मतलब क्या है जो आत्मनिर्भर भारत का सपना उन्होंने दिखाया था. एज दे सेड वोकल फॉर लोकल. सर सिर्फ व्यापारी ही नहीं, जो चार्टर्ड फर्म्स हैं वो भी विदेशियों से बहुत दुखी हैं, एमएनसी से वो भी बहुत दुखी हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं या छोटा पार्टनरशिप जिनका शुरू होता है 4 लोगों का 5 लोगों का, दे कैन नॉट कम्पीट विद द लार्जर फर्म्स. So they always face so much of challenges. Likewise जो बिजनेसमैन है उनको तो बहुत ही फेस करना होता है. जैसे भी ग्लोबली अगर उनको compete करने की बात आती है, सो जो हमारे छोटे व्यापारी इंडियन ब्रदर्स होते हैं बिजनेसमैन, उनके पास उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता है और उतने इक्विपमेंट भी नहीं होते, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड भी नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं उन्हें लॉस होता है. जब आप compete नहीं कर पाते हैं, आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ती है, तो बाहर का माल आता है सस्ता आता है. एवरीबडी गो फॉर द चीप. दे यूजुअली इन द फर्स्ट चांस दे डोंट सी फॉर द क्वालिटी. सबसे पहले लोग यही देखते हैं ना कि अच्छा कुछ अगर मुझे 100 रुपए में मिल रहा है और दूसरा अगर 1200 रुपए, ये 120 रुपए में मिल रहा है, तो 100 रुपए वाले को सबसे पहले लेंगे. कुछ एक बात और ये भी आई कि सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब हम कट ऑफ कर देंगे, अब हम दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, जो करेंगे हम ही करेंगे. सर ऐसा नहीं है. We are so much of dependent from the import. जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, हर कुछ हम अपने से नहीं बना सकते. Yes, we can, but it will definitely take time, but considerable time.
सो इमीडिएटली इफ यू से कि नहीं आज ही हम चेंज कर दें, तो सर आज ही पॉसिबल नहीं होगा. इट विल टेक टाइम. You will have to build up your own business, your own quality, your own infrastructure, your own manpower. Only then you would be able to compete, and only then you would be able to give the quality in your product which everybody is looking for. तो हमारा जो मतलब है कि बाइकआउट कर दें, तो बाइकआउट करने का मतलब नहीं है. लोग बोलते हैं हम चाइना की चीजें नहीं खरीदेंगे. सर बिल्कुल मत खरीदो, लेकिन खरीदने से पहले खुद को इतना बेहतर तो बना लो कि आप अपने प्रोडक्ट को ही यूज कर लो. कुछ लोग बोलते हैं हम आइसोलेट कर लेंगे वर्ल्ड से. सर हमें आइसोलेट भी नहीं करना है. एक व्यापारी बनो सर, कि आपको जो बेहतर लगे, जो सस्ता लगे, वो जरूर आप खुद बना लो. अगर कोई प्रोडक्ट आपको बनाने में 50 रुपए में बन रहा है और खरीदने में आपको 30 रुपए मिल रहा है, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई आपको खुद ही वो बनाना चाहिए. 20 रुपए का लॉस हो लेकिन इंडिया से बने, ऐसा आई वुड नॉट सजेस्ट. एमएसएमई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जरूर ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ नहीं किया. बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. लॉकडाउन, आई वुड से थैंक्स टू द लॉकडाउन एंड कोरोना, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. कुछ अच्छाई होती है तो ही कुछ बुराई होती है. अगर आप सोचो सर कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तब हम बुरे को कवर कर पा रहे हैं, सिर्फ बुरा ही बुरा तो नहीं हुआ ना. वी गॉट चेंज द डेफिनेशन. अर्लियर बहुत छोटा सा डेफिनेशन होता था, नाउ 2250 करोड़ इंक्लूड किया गया. Earlier only investment criteria was there, but now turnover criteria is also exist. प्राइवेट पार्टिसिपेशन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं. डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की अगर बात करते हैं 74% तक अलाउ कर दिया गया है. सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सिस्टम में देखो तो कितना ज्यादा चेंजेस हुए हैं. मध्य प्रदेश रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा. तो यस, इंडिया में डेवलपमेंट हो रहे हैं. जैसे इनिशियली आप पीपी किट की बात करें कि पीपी किट हमारी कितनी प्रोडक्शन होता था, 1.5 लाख पीसेस जो है पर डे बनने लगे. उसके अलावा आईआईटी एलुमनी ने 21,000 करोड़ का फंड इकट्ठा किया एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए. इंडिया में बोलते हैं भारत के नेटवर्क को हमेशा यूज करते हैं. वी हैव 5G नेटवर्क. जब दुनिया अपने हाल में बेहाल थी तब हमारे मुकेश अंबानी जी ने बहुत पूरे दुनिया में सबसे अच्छा फंड इकट्ठा करके अपने जो कंपनी है उसको डेट फ्री बना दिया. 5G नेटवर्क उन्होंने लॉन्च किया. 5G टेक्नोलॉजी जो आप देखेंगे वो मेड इन इंडिया हुआ करेगी, जो आप आगे यूज करने वाले हैं. तो बहुत सारी चीजें हुए. स्वदेशी मूवमेंट आज का नहीं है, आज तो आपको बस जगाया जा रहा है, आपकी आंखें खोली जा रही हैं. जबकि स्वदेशी जो मूवमेंट है वो तो बहुत पहले से चला रहा है. हमारे गांधी जी भी बोलते हैं ना, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेश की चीजें, घर की चीजें आप इस्तेमाल कीजिए. और आज हम कोरोना काल में भी जब ज्यादा परेशान है तो हम काढ़ा पीते हैं. जो घरेलू नुस्खे हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है और हम अपने जो बॉडी है उसको फिट रख पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं देश की जो घर की चीजें हैं, जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, उनमें भलाई थी और आज वो चीजें सही हो रही हैं. इंडिया में ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ कमी है. आप सेल देखें स्टील प्रोडक्शन के लिए, वी हैव IITs, वी हैव एम्स, वी हैव DRDO, वी हैव फॉर एविएशन HAL, देन इसरो, NTPC, गेल. हर क्षेत्र में हमने अच्छा किया हुआ है. अब उसको थोड़ा सा बूस्ट देने की जरूरत है, अब थोड़ा चेंज करने की जरूरत है. अब हमें जो बाउंड्रीज हुआ करती थी, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हुआ करती थी, नाउ देयर इज नो लिमिट. गुप्ता जी दिल्ली में बैठे हैं, बट ही कैन सर्व द क्लाइंटेल फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम यूपी, फ्रॉम कैलिफोर्निया, इटली, जापान, कहीं के भी क्लाइंटेल को सर्व कर सकते हैं. बिकॉज वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव इंटरनेट. This is the era of technology. Now the time is for fintech. You cannot limit yourself only for the finance, but you will have to go with the technology. And when you will integrate finance with the technology, that is called fintech. So your CA office must be automated, because you cannot move your files from one place to another. But if you have things on the cloud, then you can move anywhere in the world. Sky is the limit.
ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज सर बिल्कुल खत्म हो गई है। तो अब आपको ग्लोबल बनाना है, खुद को ग्लोबल बनाना है, अपनी सर्विसेज को ग्लोबल बनाना है, अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाना है। जो प्रधानमंत्री जी ने बोल्ड रिफॉर्म की बात किया कि जो चेंजेस वो करने के लिए कह रहे हैं, तो सर उसके बारे में बार आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हम सप्लाई चेन की बात करेंगे, सप्लाई चेन। दूसरा रेशनल टैक्स सिस्टम, सिंपल एंड क्लियर लॉ, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनिंग्स देने की बात हुई, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। ये पिलर ऐसे हैं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। In the coals, mineral, defense, every field we have huge opportunity. The time is to grab. और सर ग्रैब वही होगा जिसके अंदर टैलेंट होगा। So as I said, 13th May, the historic day for the businessman, industries, and people who actually want to do something. That historic day comes with a lot of opportunity, which today we will be discussing one by one. सर अगर मेरी पीपीटी किसी को नहीं दिखती होगी, सो डू स्टॉप मी, मुझे एक बार आप बता देना। आई एज्यूम एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। Whenever Pradhan Mantri ji has announced the package of 2022, they talked about 5 things: the economy, where चंद्र अग्रवाल जी अपने को म्यूट कर लीजिए। We actually want a quantum jump, then infrastructure. कि हम अब टेक्नोलॉजी के साथ तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, क्योंकि किसी भी देश का जो विकास होता है that depends on the infrastructure of that country, so we need to work on that. Then system, we are living in the 21st century and this is the era of internet and digital market, so we cannot limit ourselves to files, to the hard papers, but we'll have to grow up with the technology involved. Demand. So these 5 years are actually. चंद्र अग्रवाल जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये 5 बातें मैंने आपको बताई, 5 पिलर थे, उसका वेलकम किया गया। नो डाउट सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत एक बोला गया कि एक्चुअली कुछ थोड़ा मौकरी भी हुई कि 20 लाख करोड़ का पैकेज हुआ भी या नहीं हुआ है, क्योंकि मिल कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है। तो नो डाउट हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या था इस पूरे पैकेज में। 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला मुझे जो पर्सनली सबसे बढ़िया लगा, वो मैं फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्लोबल टेंडर होते हैं। सर आई वुड से, मैं लोगों को कहता हूं कि मुझे आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी दो, मुझे तरीके बता दो, बाकी मुझ में खुद में काबिलियत है ना, तो मैं खुद ही करके दिखा दूंगा। सो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है ग्लोबल टेंडर में। हमें अलाउ किया गया कि जो 200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर होंगे, out there only Indian businessman, Indian industry can only quote. जो बिडिंग होगी इंडियन इंडस्ट्री कर सकती है, बाहर की कंपनी नहीं कर पाएगी, एमएनसीज नहीं कर पाएंगी। तो सर अब जो आपको कहना होता था ना कि अब जब विदेशी आते हैं तो हम compete नहीं कर पाते, तो सब वो अब आपका वो बात चली गई। Now you will have to prove, yes, we have the opportunity and yes, we have the capability. So we can do. आप करके सर दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा रिफॉर्म था। सेकंड, जो एनपीए अकाउंट हो जाते हैं उनके लिए भी एक सबऑर्डिनेट डेट की फैसिलिटी लाई गई। यूजुअली व्हेन अकाउंट टर्न इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एंड इट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ सब स्टैंडर्ड, तो उसे क्या किया जाता है, उसकी फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाती है। एक अकाउंट एनपीए हो तो उसके सारे अकाउंट एनपीए कर लिए जाते हैं, फंड उसको अवेलेबल नहीं हो पाता और उसकी वजह से उसका चलता हुआ बिजनेस भी रुक जाता है। तो उसके के लिए उस एनपीए कैटेगरी वाले बिजनेसमैन के लिए भी एक फैसिलिटी दी गई, सबऑर्डिनेट डेट, वेयर द फाउंडर, द प्रमोटर विल गेट द फंड फ्रॉम द बैंक
and then that fund will be infused in the business as a equity contribution. Through that, amount can be used in the business and for the payment of, for the regularization of that sub category of debt. उससे डेट इक्विटी भी सही होगा, फंड में थोड़ा लिक्विडिटी बिजनेस में आएगी और बिजनेस फिर से चल पड़ेगा। फंड ऑफ फंड एक स्कीम लाई गई जहां पे फिर एक ये भी इक्विटी की ही स्कीम है, इक्विटी की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। ये कुछ ऐसी चीजें थी, ऐसा रिफॉर्म था जो कि बहुत जरूरी था। फिर इसके बाद डेफिनेशनल जो चेंज आया है उसमें टर्नओवर की कैटेगरी लाई गई है, ये भी बहुत अच्छा रिफॉर्म था। तो इन सब चीजों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। विल नॉट बी डीलिंग each and everything of that 20 lakh crore package, but we will be discussing on the, our limit will be for MSME. So the 20 lakh crore 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो सिर्फ इंडिया ने ही क्या दिया या और भी कंट्रीज ने दिया था? So sir, we stand in the fifth position. The first was Japan, where they have announced 21.10% of their GDP. Then US, Sweden, Germany, then India, where we have announced 10% of our GDP. No doubt it was a very bold reform, so industry has come up with positivity. मार्केट में भी चेंजेस देखने को मिले और इंडस्ट्री में ने सबने वेलकम किया इन डिसीजंस का। इस पैकेज को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 5 दिन देवी जी आई थी और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और 5 अलग अलग दिनों में उन्होंने कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हर सेक्टर के लोगों को दिया। So the first one was 5,94,000 crore, then 3,10,000, 1.5 lakh, then 48,000. In total, it was around 11 lakh. और जो पहले मेजर किए गए थे आरबीआई वगैरह के, उसमें 9,94,000 करोड़ पहले ही था, तो इन टोटल इट वाज 20.97 लाख करोड़। पार्ट 1 की हम बात करेंगे, जिसमें मेरे पास सर फोन आते हैं कि सर वो 3 लाख करोड़ जो आया था उसमें से कुछ मिलेगा। सर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। 3 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो ये भी बोला जाता था कि सिर्फ एमएसएमई के लिए है। सर आई वुड से दिस इज नॉट ओनली फॉर द एमएसएमई, बिकॉज देयर आर सम कैटेगरी व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग, दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एमएसएमई, but still this facility is available to those businessmen because the language is facility for the business including MSME. So you cannot limit only for MSME, but this is say including MSME. Then we had words about the subordinate debt, then fund of fund, EPF support. So majorly we will be discussing on the first 3. Now, since the time is for revolution, earlier in the 18th century we have seen the first revolution जहाँ पे मशीनरी में चेंज आया था। फिर इसके बाद सेकेंड जो रिवोल्यूशन आया 19th से 20th सेंचुरी में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बेस्ड मास प्रोडक्शन में बदलाव हुए। थर्ड जनरेशन में जो चेंज हुआ उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का जो नॉलेज था उसको ग्रैब किया गया और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया गया। सो वी स्टैंड ऑन द फोर्थ रिवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां की आपके बिजनेस में सिर्फ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लाना है। आप आई हैव सीन व्हेन आई गो फॉर द विजिट, मैं स्टॉक ऑडिट और जब फिजिकल विजिट के लिए अपने स्टेट जाता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज में मैंने देखा है कि जहां पे 200-300 वर्कर, बल्कि 1000 वर्कर एक साथ काम करते थे। आज के डेट में सिर्फ 5 से 10 वर्कर वहां काम करते हैं। तो सर क्या हुआ? क्या सारे वर्कर चले गए या फैक्ट्री बंद हो गई? नहीं सर, उसको इतने अच्छे तरीके से ऑटोमेट किया गया कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से लिंक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस एक प्रोडक्शन या एक रॉ मटेरियल दूसरे प्रोसेस का इनपुट बनेगा, पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनेगा, ऐसा इंटीग्रेट किया गया जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ड्रिवन। सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया कि क्या होता है और ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस पे आप इनपुट डालते हैं और पूरे दिन भर प्रोसेस होता है, शाम को आपको आउटपुट मिल जाता है। दिस इज टेक्नोलॉजी। 200 लोग अब आप किसी और काम में लगा सकते हैं, वो आपके काम से फ्री हो गए, आप कहीं और उनको लगाओ। मैं ये नहीं कहूँ उनकी जॉब चली गई, उनको थोड़ा और अपग्रेड करना है सो दैट वो किसी और अच्छे तरीके से काम कर सके।
अब सर बात ये आती है एमएसएमई की, कि एमएसएमई इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं एक बार चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज मुझे मैसेज में डालें कि एमएसएमई इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई एमएसएमई इज इंपॉर्टेंट। आई विल टेक 30 seconds to 1 minute to look at the chat box. I request everyone, please put your comment. अभी चैट बॉक्स में मैं नहीं देख पा रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन। सर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप क्वेश्चन डालिए और बी इंटरेक्टिव। सर जितना आप इंटरेक्ट करेंगे दैट मच आई विल ट्राई टू गिव, अदरवाइज दिस सेशन विल बी वन वे सेशन, कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और थोड़ा सा आपको फिर नींद आ जाएगी। क्योंकि जब सीएस की क्लासेस भी मैं जैसे पढ़ता था तो देखता था कि एक जगह बस लेक्चर अगर चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा नींद आती है। तो सर थोड़ा गर्म पानी भी आप रखो, और आई वुड से आपको बहुत मजा आने वाला है। आज के सेशन में आप कुछ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी लेके जाने वाले हैं, बट दिस कैन बी ओनली पॉसिबल इफ यू विल इंटरेक्ट। गिव योर क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे दीजिए, आई विल ट्राई। मैं अगर जवाब दे पाऊंगा तो अच्छा है, नहीं हम कल जवाब दे देंगे आपको। MSME requires special care and consideration by government. थैंक यू सो मच आर के गुप्ता जी। सर वैसे भी एक्टिव रहते हैं और अभी दिख भी रहे हैं। यस, और भी हमारे सीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यंगस्टर्स, डायनेमिक ब्रेन्स, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में और अपनी कुछ कमेंट डालिए। चलिए, अगर अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है सो आई विल रन द पीपीटी फर्दर। सर एक चीज बताएंगे। जी जी। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे लोगों ने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराया जी, तो स्पेसिफिकली उसका कहां पर क्या बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं? बिल्कुल सर बताऊंगा। एक तो सर सबसे बड़ा बेनिफिट आप ये बताओ, आप सर ऑडिट फील्ड में है टैक्सेशन में है? स्पेशलिस्ट तो नहीं है सर, हम तो मल्टीपर्पज हैं। अच्छा, मल्टीपर्पज। तो सर आप एक चीज तो देखते होंगे ना कि आपका जो ऑडिट फीस है वो अगले साल ही आती होगी। मोस्टली तो सर एमएसएमई में अगर जब आप अगले साल के लिए ऑडिट के लिए बोलते हैं तो पिछला चेक आ जाता है, और भाई अधिकतर क्लाइंट्स के साथ ऐसा ही है। जी जी। तो सर एमएसएमई में अगर आप रजिस्टर्ड हैं और अपने बिल में आप लिख के देते हैं तो कोई भी कंपनी आपके बिल को, कोई भी व्यक्ति आपके बिल को 45 दिन से ज्यादा डिफर नहीं कर पाएगा। 45 डेज में देने का प्रोविजन है। अगर 45 डेज में नहीं पे करते हैं तो आपको जो आरबीआई का रेट है उसका 3 गुना इंटरेस्ट भी मिलेगा। और हम आज डिस्क्लोजर की भी बात करेंगे कि बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाना होता है। जी, तो एमएसएमई क्यों इंपॉर्टेंट है गुप्ता सर से हमने जाना। इसके बाद देखिए एमएसएमई इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद एक यही सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तकरीबन टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 45% is being contributed by the MSME only, and out of total export around 40% is being contributed by the MSME, and this percentage may be increasing in the coming years because now awareness is coming, everybody is focusing, everybody is just trying to understand the exposure and the opportunity available in the MSME sector. तो MSME पहले अभी अभी जस्ट आया क्या, अभी एक्ट पास हुआ है ऐसा तो सर है नहीं। MSME वाज वेरी ओल्ड लॉ, लेकिन ये ऐसा बच्चा है जो कि दुनिया में तो आ गया था। इसके माँ बाप ने दुनिया में तो इसको ला दिया, लेकिन इसके बाद बोले कि बेटा तो चुप रहे, गूंगा बहरा बना के छोड़ा था। अब क्या हुआ सर, अब इसको इतना ज्यादा नॉलेज हो गया, गुप्ता सर की संगति में आ गया है ये, बहुत सारे लॉ रेगुलेशन इसने पढ़ लिए कि अब ये दुनिया को बोलता है कि मुझसे समझो, मुझे जानो, और मुझे जानोगे तो आप फायदे में रहोगे। जैसे हम गुप्ता सर की संगत में आते हैं तो बहुत हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, हर फील्ड का ज्ञान हमें मिलता है। तो लाइकवाइज ये बच्चा भी बोलता है कि आप मेरे बारे में जितना जानोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब सर ये फायदा कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये भी हम देखते हैं आज। तो 2 अक्टूबर 2006 को प्रेसिडेंट साहब ने एसेंट दिया था इस लॉ के लिए। बहुत छोटा सा लॉ है,
मात्र 32 सेक्शन है, जिसमें से तकरीबन 10 सेक्शन जो है, तकरीबन 10 ऐसे सेक्शन है जो कि आपके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जनरल सेक्शन है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, 2007 में इसको बनाया गया था। 2020-21 के बजट में अगर आप देखो तो 7,572 करोड़ एलोकेट किया गया था, जो कि इस वाले बजट में आम एक्सपेक्टिंग की बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है, क्योंकि अब एमएसएमई ही एमएसएमई चल रहा है। और जैसे गुप्ता सर बोलते हैं एमएसएमई क्या है, मौसमी है, तो अब एमएसएमई का मौसम चल रहा है, मौसमी का मौसम चल रहा है। तो अब इस फल को जितना खाओगे, जितना चखोगे, उतना आप तंदुरुस्त रहोगे, आपका बिजनेस भी उतना आगे बढ़ेगा। जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, व्हाट एक्चुअली मिनिस्ट्री डज, सो मिनिस्ट्री हेल्प बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्री इन द फैसिलिटेशन एंड क्रेडिट फ्लो, फंडिंग के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। दे गिव ऑप्शंस कि आप इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी जाके अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड अवेयरनेस देते हैं और सपोर्ट देते हैं। साथ में ही प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू जो आपको फंडिंग मिलती है, आप अपना नया वेंचर खड़ा कर सकते हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, उसमें आपको सब्सिडीज भी मिलती हैं, आपको बहुत सब्सिडाइज रेट में फंडिंग मिल जाएगी, आपको मोरेटोरियम पीरियड भी मिल जाता है कई सारी स्कीम्स में, जिससे कि आपको इमीडिएट रिटर्न नहीं करना पड़ता, उस पैसे को आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। कोई भी बिजनेस है, अगर मुझे वो बिजनेस शुरू करना है तो ये कुछ उसकी स्टेजेस हैं which I have presented on my screen. First one is thought process. Which project you want to start with? कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप कोचिंग सेक्टर जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं? क्या आप पीपीई किट बनाना चाहते हैं? या कोई जो मेडिसिन है, मेडिसिन बनाने की कोई कंपनी आप बनाना चाहते हैं? या फिर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं? So the first stage is to thought about the process and expertise which you have regarding your business. Then see how the technology can be helpful and it can be integrated, कि आप आज के दौर में टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Then अब आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, मशीनरीज भी है, तो आपको फंडिंग कैसे मिलेगी, आपको उसके बारे में सोचना है। तब जाके आपको यूनिट डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, फिर वेरियस अप्रूवल, क्लियरेंसेस, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, वो सब आप लेंगे, फिर टेस्टिंग वगैरह करवाएंगे कि जो मैं सोचता था, जो मेरा प्रोडक्ट था, क्या उसी क्वालिटी का मेरा प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो टैक्सेशन की कंप्लायंसेस हैं, आप वो चेक करेंगे। एमएसएमई है तो एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए चेक करेंगे। और साथ में अब आपका अगर बिजनेस भी रन हो गया है और पेमेंट फंस गई है, तो एक ट्रेड्स करके सर्विसेज है, वहां पे आप अपने बिलों को भुना सकते हैं, डिस्काउंट भी करा सकते हैं। एमएसएमई के जो बेनिफिट्स हैं, प्रायोरिटी बेनिफिट देखें तो प्रायोरिटी लेंडिंग, अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन लोन लेने के लिए जाता है और एक एमएसएमई जाता है, so the first priority would be MSME, because government has given so much clarification and the direction guideline to the banker that you need to approve at earliest the funding which is required to the MSME. You cannot put file side में आप नहीं रख सकते हैं कि चलो देंगे जब देंगे। Then collateral free loan. If you are the first generation entrepreneur and you don't have the legacy of business like Ambani's and Tata, तो अंबानी साहब ने तो अपने बेटे को भी, बेटी को भी बिजनेस खड़ा कर दिया। बट अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, देन यू डोंट हैव दैट मच क्रेडिट एंड द फंडिंग एज वेल, तो उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी देना मुश्किल होता है। बट नाउ अंडर द CGT MSE स्कीम, गवर्नमेंट हैज गिवन कोलेटरल सपोर्ट टू द न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स. They can get funding from the banker giving security from the CGT MSE, so they don't need to give the security from their own. Then promotional subsidy, as I talked about the subsidy in the PM-EGP, जहां पे 35% तक की सब्सिडी मिलती है।
Also, you will get some exemption in the interest rate, 50% subsidy in the patent registration. Then as I discussed, delayed payment का सबसे ज्यादा चक्कर होता है, तो delayed payment में आपको यहाँ राहत मिलेगी. ISO सर्टिफिकेशन में आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा. इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप MSME सेक्टर के हैं तो आप जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे तो आप दफ्तर जाइए, वहां पे बोलिए मैं MSME सेक्टर का हूं, दुनिया प्रमोट कर रही है, आप मुझे क्या कंसेशन देने वाले हो, आप उनसे बात कीजिए. Then technology upgradation, capital and other grant for the infrastructure change, compliance exemption, IBC की आप बात करते हैं, IBC में देखो पहले 1 लाख की लिमिट थी, अब 1 करोड़ तक की लिमिट कर दी गई. तो सर अगर थोड़ा सा आपका डिफॉल्ट था और आप फंसने वाले थे तो अब आप बच जाएंगे. कंप्लायंसेस में देखो GST में बोल दिया गया 500 रुपए से ज्यादा आप पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी. ज्यादा आपको टाइम दे दिया गया रिटर्न फाइल करने के लिए. इफ यू टॉक अबाउट द इनकम टैक्स, तो पिछले साल की रिटर्न जो बिलेटेड रिटर्न है उसे आप अभी दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं. तो हर जगह कंप्लायंस में भी सर एज MSME आपको फायदा मिलेगा. अब MSME की डेफिनेशन के अनुसार अगर आप बात करें कि एंटरप्राइजेस, इंटरप्राइज मतलब कोई भी ऐसा एंटिटी जो कि कुछ बनाता है, जैसे कुछ प्रोडक्शन करता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है या कोई सर्विसेज देता है. या तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप सर्विसेज में एंगेज होंगे. दोनों में से आप कुछ भी कर रहे हैं तो यू विल बी कैटेगराइज्ड एज एंटरप्राइजेस. As per section 7 of MSMED Act, which talks about the classification, 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. This classification was done before the May month 2020. There was 2 category, as I said, the one was manufacturing, another was services. दोनों के लिए सेपरेट सर लिमिट है. अब सर नहीं है, सेपरेट लिमिट थी. तो पहले लिमिट की अगर आप सर बात करते हो कि पहले की क्या कैटेगरी थी, माइक्रो कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेस देन 25 लाख एंड सर्विसेज के लिए लेस देन 10 लाख. तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम था और सर्विस सेक्टर में इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम था तो आप माइक्रो कैटेगरी में होते थे. लेकिन अगर इससे ज्यादा था, 25 से ज्यादा हो गया, 5 करोड़ तक का है इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, तो स्मॉल कैटेगरी में आएंगे. सर्विसेज सेक्टर में 2 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल कैटेगरी में आएंगे. वहीं अगर इससे आपका और ज्यादा हो गया इन्वेस्टमेंट, लेस देन 10 करोड़ in case of manufacturing and less than 5 crore in case of services, so you would be classified in the category of medium enterprises. तो ये तो सर होती थी पहले की डेफिनेशन. अब क्या हुआ, 13 मई को एक चेंज आया. 13 मई को सर जो चेंज आया उसमें बोला गया कि अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं रहेगा. This change come into the picture after 14 year. 2006 के बाद 2020 में हम खड़े हैं, 14 साल में चेंज आया और वो भी छोटा सा चेंज आया. उसमें बोला गया कि 2 चेंजें हैं. एक तो हम आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया भी देते हैं, दूसरा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको भी बढ़ा देते हैं. तो टर्नओवर का क्राइटेरिया भी ऐड कर दिया गया. और जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर सेपरेट होता था, नाउ बोथ आर इंटीग्रेटेड. अब दोनों क्लब कर दिया गया. सो द क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द टर्नओवर विल बी लुक्ड एट वंस. एक साथ देखा जाएगा, 1 फॉर सर्विसेज 1 फॉर मैन्युफैक्चरिंग. अब दोनों के लिए अलग अलग नहीं, एक ही क्राइटेरिया रहेगा. तो अगर इन्वेस्टमेंट जो है लेस देन 1 करोड़ है, टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, तो आपका जो एंटिटी है दैट विल बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो. वहीं अगर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है, then you will be falling under the category of small enterprises. अब तीसरी कैटेगरी भी सुन लो सर कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 10 से ज्यादा है लेकिन 20 से कम है, टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो आप किस में कैटेगरी में आएंगे, मीडियम इंटरप्राइजेस में आएंगे. लेकिन ये भी कम नहीं था. अब लोगों ने बोला कि सर अब तो आपने इतने साल बढ़ाया है, थोड़ा और बढ़ाओ. इसमें क्या हुआ, ये तो 100 करोड़ तो बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ बहुत कम है. तो गवर्नमेंट ने फिर सुन ली जनता की. फिर गवर्नमेंट बोलती है
कि चलो सर आप जो कह रहे हो तो हम आपकी बात को मान लेते हैं। अब 26 जून को उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन दिया, उसमें उन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो माइक्रो और स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का क्राइटेरिया था दैट इज इंटैक्ट, वो सेम है, बट फॉर द मीडियम इंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हैज बीन enhanced to 50 crore and the turnover criteria has been enhanced to 250 crore। तो अब आपके बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का है, तो उस केस में क्या होगा, आप मीडियम कैटेगरी में फॉल होंगे और आप एमएसएमई कैटेगरी में ही रहेंगे। तो सर अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज आ गया। अब 250 करोड़ तक का अगर आपका बिजनेसमैन है तो वो भी एमएसएमई कहलाएगा, जहां की पहले 10 करोड़ तक का ही मात्र हुआ करता था। अब सर ये जो लिमिट्स चेंज हुई हैं, ये सारी लिमिट अब एज ऑन डेट एप्लीकेबल हो चुकी हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है ये दोनों साथ में देखने हैं या कोई एक रहे तो भी चलेगा? तो सर ये कंपोजिट है, मतलब you will have to check the investment and turnover, meaning thereby if you have crossed one limit then you will move to the upper limit। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं लूं, 2 करोड़ का मेरा स्मॉल माइक्रो कैटेगरी में मुझे 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना है, 5 करोड़ तक का टर्नओवर होना है। तो अगर 2 करोड़ से बढ़ गया 3 करोड़ हो गया इन्वेस्टमेंट, लेकिन टर्नओवर अभी 5 की कैटेगरी में ही है, तो सर एक तो मैं फॉल कर रहा हूं ना। तो अगर आपको फॉल लोअर कैटेगरी में करना है तो आपको दोनों ही क्राइटेरिया कंप्लाई करने पड़ेंगे। अगर एक क्राइटेरिया आपका कंप्लाई नहीं होता तो सर आप अपवर्ड, आप आगे के लिए मूव कर जाएंगे, राइट सर। दूसरा सर ये बोला जाता है कि पहले मेरे 10 यूनिट होते थे तो मैं 10 एमएसएमई ले लेता था अलग अलग यूनिट के, तो क्या मैं अभी भी 10 यूनिट के लिए सेपरेट ले सकता हूं? अब सर अगर आपकी कंपनी है, उसका पैन 1 है, यूनिट भले ही 10 हैं, तो सर जीएसटी तो आप 10 या 25 ले सकते हैं, लेकिन एमएसएमई एक ही मिलेगा। जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट है वो पैन बेस एग्रीगेट कर लिया जाएगा और जो एग्रीगेट अमाउंट होगी उसके बेसिस में चेक किया जाएगा। If the investment amount and the turnover which will be aggregated all over the India for the single PAN, and still you fall under the category of MSME which the threshold has been given, then you will be classified as MSME, otherwise not. And for the classification, only criteria falling is not must, but you will have to apply at the MSME portal. वहां जाके सेक्शन 8 के हिसाब से सर आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, देन यू विल बी कॉल्ड एज उद्यम और एमएसएमई। उसके अलावा आप चाहो कि नहीं सर मैं क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा हूं, तो क्या मैं एमएसएमई का बेनिफिट ले सकता हूं? नहीं ले सकते हो सर। मूविंग फर्दर, जो इसमें एमएसएमई में टर्नओवर में इन्वेस्टमेंट मैंने बोला और टर्नओवर का क्राइटेरिया बोला, सर ये चेक कैसे करेंगे? तो सर 2 चेंजेस किए और जो ज्यादा ही खतरनाक थे, पहले थोड़ा झोल हो जाता था, नाउ अब ऑप्शन ही नहीं है। अब सर क्या हो गया है, नाउ थिंग्स आर लिंक्ड विद द जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिटर्न। So while filing our income tax return, we usually give the detail of our fixed assets, the WDV value. And while filing the GST return, we give our PAN card, Aadhaar card, and all other detail. And turnover can also be checked from the GST and from the income tax as well. तो जो आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है वो पेपरलेस है, आपसे सिंगल पेपर भी नहीं मांगता। तो सर अगर वो ब्लाइंड फेथ कर रहा है तो कहीं से तो वेरीफाई करेगा। Earlier there was system when you will be giving for the application instant you will get the certificate, but now things are changed. After your successful application, your data will be given to the GST portal and the income tax portal.
Once the data will be matched from both the portal, then it will be approved and you will be given the certificate. So unlikely the earlier system, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आपको सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही मिलता है। अब बात ये आती है कि जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट है वो मैं किस डेट का लूं, कब चेक करूं? तो सर जो लास्ट ईयर की आपकी ITR होगी वहां से आपको चेक करना होगा, लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल आपने बनाए होंगे वहां से चेक करना होगा। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं अगर नया व्यापारी हूं, नया बिजनेसमैन हूं, तो नए बिजनेसमैन के केस में क्या होगा? सर नए बिजनेसमैन के केस में आपको पास ऑप्शन आता है कि आप टिक करो कि मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको तो डिटेल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 31 मार्च के बाद जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको अपडेट करना पड़ेगा आपका डेटाबेस। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं, आपका हो सकता है टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाए और आप MSME कैटेगरी को क्रॉस कर जाएं और स्टिल यू विल बेनिफिट विदाउट अपडेशन, देन अंडर सेक्शन 27 ऑफ MSMED एक्ट 2006 आप पेनलाइज किए जा सकते हैं। अब सर जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी की, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इंक्लूड नहीं करनी पड़ेंगी, जैसे कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस। ये सारी चीजों पे आपने जो खर्चा किया होगा उसको आप इन्वेस्टमेंट में नहीं लेंगे। मीनिंग देयर बाय इफ you are crossing the threshold just because of the amount which fall under this category. Let's say आपका टोटल 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, टोटल 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो इन इक्विपमेंट्स पे है, तो अब आप इन इक्विपमेंट्स के पार्ट को हटा दो, तो अब आप 40 करोड़ के इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में आएंगे और 40 करोड़ विद इन लिमिट है, इसलिए आप MSME ले सकते हैं। सेकेंड रिलीफ, इसके बाद तो बिजनेस इंडस्ट्री के 99% बिजनेसमैन जो हैं वो MSME में आ गए हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ MSME थ्रेशोल्ड। इट मींस कि अगर मेरा 300 करोड़ का बिजनेस था, जिसमें से 250 करोड़ का जो बिजनेस है वो तो एक्सपोर्ट का होता था, लोकल 50 करोड़ ही होता था, तो इन जनरल इफ यू सी यू हैव क्रॉस्ड द 300 करोड़ 250 करोड़, so you cannot be the part of MSME, but if you will exclude the amount of export turnover that is 250 crore, then you will be falling under the category of MSME. तो सर ये बहुत बड़ा चेंज था। अब रीबर्थ हुआ है क्योंकि MSME का। तो चैट बॉक्स में मुझे कोई बताएगा कि ये उद्यम क्या होता है? एनीबॉडी? चैट बॉक्स में प्लीज अगर कोई मुझे बता सके ये उद्यम क्या होता है। किसी ने नाम सुना है उद्यम रजिस्ट्रेशन? नितिन गुप्ता जी, मैं आपके सवाल पे आऊंगा अभी जब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स है। यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द उद्यम इज? इन माय ओपिनियन उद्यम मीन्स बिजनेस। ओके, जो हमारे सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, अनुभवी लोग हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अनमोल गुजरात जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यस, तो पहले जो मैं भी गांव का लड़का हूँ, गांव देहात में रहता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो अक्सर गांव की जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें बोलते हैं ये उद्यमी है। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में एक सब्जेक्ट लगता था उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उसे बोलते थे, उद्यमिता विकास। तो जो व्यापारी होता है उसको बोलते हैं उद्यमी, रिस्क लेता है वो।
जोखिम उठाता है, इसे बोलते हैं उद्यमी। तो अब क्योंकि हमारे ये जो अभी सरकार चल रही है, तो सरकार क्या देसी चीजों को बढ़ावा दे रही है, तो अब देसी चीजें और भी हमारे सामने निकल के आ रही हैं। तो पहले जो इसका रजिस्ट्रेशन होता था एमएसएमई का, उसे बोलते थे ईएम रजिस्ट्रेशन, जिसका फुल फॉर्म भी मैंने लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम। फिर चेंज हुआ, चेंज होके इसका नाम किया गया उद्योग आधार मेमोरेंडम 2017 में। फिर इसके बाद अभी जून में फिर इसको चेंज कर दिया गया और अब इसका नाम हो गया उद्यम। तो सर ये उद्यम, तो अब आप किसी को एमएसएमई बोलेंगे तो वो आपसे बोलेगा कि मुझे उद्यम रजिस्ट्रेशन लाके दो। पीपल इन द इंडस्ट्री आर आस्किंग फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। और एक चीज और आपको भी आगे चलते हुए बताऊंगा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की, कि लाखों करोड़ों लोग जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हुए थे, अब सबको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या तो पुराने को अपग्रेड कराना पड़ेगा उद्यम में, बिकॉज दिस इज अप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई। ऐसी कुछ स्क्रीन जैसे फेसबुक की स्क्रीन है ना, ज्यादा लोगों को आदत है फेसबुक की। सो लाइकवाइज द साइट विल बी लुक लाइक द पीपीटी विच आई हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू ऑल। आप देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन www.udyogadhar.gov.in में जाएंगे तो ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। सो वी हैव टू ऑप्शंस, वन फॉर अनुज जी, इससे पहले हम आगे चले, नितिन गुप्ता जी के 2 क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाँ मैंने सर पढ़ लिया वो क्वेश्चन, मैंने उनको बताया है कि ये क्वेश्चन मैं स्कीम के साथ ही लूंगा। ठीक है, ठीक, ओके जी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई है जिसने पहले करवा रखा था उद्योग आधार में या ईएम में, और दूसरा जो कि पहले रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोनों ही केसेस में आपको अपडेट करना है। अगर पहले से है तो आप उस वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब सर बात ये आती है कि अगर मैंने पहले रजिस्ट्रेशन ले रखा था तो पुराना क्या खत्म ही हो जाएगा? बिल्कुल सर, पुराना खत्म हो जाएगा और आपको नया रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई के बाद ले लेना चाहिए था। तो अब जो रजिस्ट्रेशन पुराना वाला है वो कब तक के लिए वैलिड रहेगा? वो सर 31 मार्च 2021, जो अभी मार्च आने वाला है, वहां तक एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगी। Meaning thereby, before 31st March, you will have to either upgrade your registration to Udyam or take the new registration under Udyam. ये जो नया रजिस्ट्रेशन है उसको पहले एमएसएमई बोलते थे, अब इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, मतलब एक बार आपको लेना है, दोबारा कभी सरकार का मूड चेंज हुआ, उसने नाम ही चेंज कर दिया, कुछ नई स्कीम लेके आ गई, तभी आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज चेंज नहीं करना पड़ेगा। कंप्लीट प्रोसेस जब आपकी हो जाएगी, अप्रूवल के बाद आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इंस्टेंट नहीं मिलेगा, एक क्यूआर कोड मिलता है। जब आप सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें क्यूआर कोड रहेगा, जिसे स्कैन करके कोई भी आपकी डिटेल को वेरीफाई कर सकता है। फिर इसके बाद टोटल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट नीड टू गिव अ सिंगल पेनी। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि आपसे 2000-4000 रुपए चार्ज करते हैं, बट आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। But as a professional, if anybody come to you for the registration, don't give free of cost. हम CS की ऐसी आदत हो गई है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी अपनी सर्विसेज दे देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि यार अगला हमारी कदर नहीं करता। सर जब आप पैसे चार्ज करोगे तब तो कदर करेगा। आप किसी एडवोकेट से फ्री में एडवाइस लेके देखो, किसी डॉक्टर से फ्री में एडवाइस लेके देखो, कभी नहीं देते। तो वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गिविंग फ्री एडवाइजेस? मैंने तो सर बंद कर रखा है, फ्री में मैं एडवाइस देना बंद कर दिया है, क्योंकि पैन इंडिया से मेरे पास इतने फोन आते थे कि मैं परेशान हो जाता था। सारी फ्री एडवाइजेस ही होती थी। नाउ आई हैव स्टार्टेड चार्जिंग, और अब पहले पेमेंट हो, इसके बाद ही मैं उनको टाइम एलोकेट करके और अपना जो एडवाइजरी है वो देता हूँ। तो सर आपको भी ऐसे ही करना है। कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, आपको बोलता है कि सर वो 500 में 200 में हो जाएगा, आप बिल्कुल बोलो सर कि आप जाके करवा लो। इफ यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज गिविंग सर्विसेज फॉर द एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन, चार्ज एप्रोप्रिएटली। जो प्रोफेशनल फीस है आप चार्ज करो, बिकॉज यू आर गिविंग क्वालिटी सर्विसेज। तो सर आप क्वालिटी सर्विसेज का चार्ज भी पक्का करना। दिस रजिस्ट्रेशन इज पेपरलेस, हार्डली 5 मिनट लगेंगे रजिस्ट्रेशन में, इससे ज्यादा अमाउंट आपको टाइम नहीं लगेगा।
कुछ डिटेल है जैसे पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड जो एप्लीकेंट है उसकी कॉपी, जो एक्टिविटीज है बिजनेस की वो डिटेल रखनी है, बैंक की डिटेल रखनी है, मेरा बिजनेस कहाँ पे है, मेरी पुरानी ITR अगर है तो, GST रजिस्ट्रेशन है तो, ये डिटेल हैंडी आप रखेंगे तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप रजिस्ट्रेशन को इजिली कर सकते हैं। कोई भी डिटेल, कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, पेपरलेस इसीलिए इसको बोलते हैं। कुछ भी अपलोड नहीं करना है, जस्ट द डिटेल विच यू विल बी गिविंग टू द सिस्टम दैट विल बी एक्सेप्टेड subject to verification with the GSTN and the income tax department. In case you are the first generation entrepreneur, you don't have the legacy, आपका पिछले साल कुछ भी नहीं था, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस में भी डिटेल को दे सकते हो और आपके डिटेल को मान लिया जाएगा। Once things will be approved, you will get the उद्यम registration certificate. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर इंडिविजुअल है तो उसने तो आधार दे दिया, अब कंपनी का कौन सा आधार होता है, HUF का कौन सा आधार होता है, पार्टनरशिप का कौन सा आधार होता है? तो सर हम इनकम टैक्स और GST में भी जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे अप्लीकेंट का यूज करते हैं। अप्लीकेंट तो किसी को बनाते हैं ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर या अथराइज्ड पर्सन बनाते हैं ना। लाइकवाइज इन केस ऑफ MSME you will have to authorize a person from your board of director or from your company who will be applying for the MSME registration, और वो अपना ही आधार डाल के आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज बाकी सारी डिटेल तो कंपनी की ही जाएंगी। अब एक क्वेश्चन है मेरा, फिर से मैं जनता से करना चाहूंगा, जो हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यंग एंड डायनेमिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कि सर ये बताओ क्या ट्रेडर्स जो हैं वो भी MSME का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या नहीं? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ट्रेडर्स MSME का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या नहीं। नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं तो कहाँ लिखा हुआ है? जो लोग बोलेंगे ले सकते हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगा। I would request all the participants, we have around 64 participants, please participate. Once you will participate, because yes, you are giving your time. Once you will participate, you will enjoy, I will enjoy. Screen camera. Sir, हमारा क्वेश्चन है, MSME services are only for service providers and manufacturers. सर कहाँ लिखा है कि ट्रेडर को नहीं मिलेगा? मेरे ख्याल में सर हम तो सर लॉ वाले लोग हैं ना, तो जो लॉ में लिखा होगा हम वही मानेंगे। मुझसे जब मैं बोलता था प्लेटफॉर्म्स पे, सेशन पे, मैं काफी सेशन जैसे लिया, तो लोग मुझसे पूछते थे सर लिखा कहाँ हुआ है? तो अगर मेरे पास लिखा नहीं होगा तो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे आप बताइए कहाँ लिखा हुआ है कि ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म दिया है ना उन्होंने, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं झलकता कि भाई ट्रेडर्स के लिए कोई उन्होंने वो पॉपअप मेनू दे रखा है या समथिंग लाइक दैट। ओके, एक तो ये क्यों मिलता है नहीं? हमें अपने सर्विसेज का NIC कोड डालना होता है। हाँ, और उस NIC कोड में एंट्री नंबर 45, 46, 47 जाके देखेंगे, सो दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेडर्स। अच्छा, तो उसके बेसिस में लोग बोलते हैं कि ले सकते हैं, बट मेरा व्यू ये है कि ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट का भी व्यू यही है कि ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा। अब मैं किस बेसिस में कह रहा हूं ये भी दिखा देता हूं। ये सर एक मेमोरेंडम था, ऑफिस मेमोरेंडम 2017 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का है, जिसमें ये बोला गया था कि इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी कैटेगरी दी गई है कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, देन यू कैन नॉट टेक द MSME बेनिफिट, यू कैन नॉट गेट द रजिस्ट्रेशन, एंड यू कैन सी द एंट्री नंबर 45, 46, 47। ठीक है सर? तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, इन एंट्रीज में हैं, तो आप MSME में फॉल नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक।
तो अब हम मूव करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जल्दबाजी में समझे या आराम से समझे, आप लोग जैसा कहेंगे। 5-7 मिनट में रजिस्ट्रेशन ही हो जाता है सर। ओके ओके ठीक है। तो देखो सर, सबसे पहले जैसे स्क्रीन आपके सामने जो स्क्रीन है, दोनों में से एक ऑप्शन आपको लेना है। मैं ले रहा हूं कि सपोज मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हाँ। तो अगर मैं ऑप्शन लेता हूं कि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा था, तो पहला वाला ऑप्शन मैंने लिया, तो ये स्क्रीन खुल के आएगी। आपको सबसे पहले जो एप्लीकेंट होगा उसका आधार नंबर डालना है, उसका नाम डालना जो आधार में लिखा था, वैलिडेट करना है। तो आधार वाले नंबर पे ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी से आप वैलिडेट करके और अगली स्क्रीन ये आपके पास आ जाएगी जैसे आप ओटीपी डालेंगे। किस संगठन का कैसा प्रकार है, लाइक आपका प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या भी बिजनेस है, तो आप यहाँ डालिए। फिर देखो आप ये स्क्रीन में लिख रहा है हैव यू फाइल्ड फाइनेंशियल ईयर आईटीआर, यस या नो। जब आप लिखोगे यस तो आगे पूछेगा कौन सी आईटीआर फाइल करी थी, आईटीआर 4, 5 या और कुछ। फिर इसके बाद पूछता है कि आपका जीएसटी नंबर है, आप लिखोगे यस या नो, जो भी आपका ऑप्शन है। फिर इसके बाद ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको डालनी है। अब ये डिटेल डालने के बाद आप जैसे और आगे बढ़ोगे तो ये पूरा एक पेज का लंबा चौड़ा सा फॉर्म है, 20-22 पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स को आप डिटेल डालते रहोगे। जैसे मैंने बोला कि आपको हैंडी रखना है अपना एड्रेस, तो ये एड्रेस की डिटेल डालनी है, बिजनेस कब शुरू हुआ था उसकी डिटेल डालनी है, बैंक की डिटेल डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है उसकी डिटेल डालनी है। देन यू विल हैव टू फिल द एनआईसी कोड। एनआईसी कोड पहले सर्च करके डालना होता था, अब आप यहाँ पे सिर्फ अपने सर्विसेज या एक्टिविटीज का नाम डालिए, ऑटोमेटिकली उसका कोड जो है वो निकल के आ जाएगा और आप ऐड कर दो 2, 4, 10 जितने भी कोड आपको डालने हो। जो टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट है, देखो आप पॉइंट नंबर 20, 21 ये इनेबल नहीं है। ये जब इनकम टैक्स और जीएसटी से वेरीफाई होगा तब ये इनेबल हो जाएगा। और आप ये बीच में जैसे डला हुआ है एक्सक्लूजन, जो कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन इक्विपमेंट, रिसर्च, R&D वगैरह वाला था, वो आप डाल सकते हैं सो दैट इनकम टैक्स में जब टोटल डिटेल निकाले तो टोटल में से इसे एक्सक्लूड करके नेट अमाउंट यहाँ पे आ जाए और आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जा सके। फिर इसके बाद 2 चीजें और हैं कि आप जेम पोर्टल पे अप्लाई करना चाहते हैं क्या, या आप ट्रेड्स में अप्लाई करना चाहते हैं क्या। आप दोनों में यस नो जो भी आपका ऑप्शन आप वो डालिए। जो आपका जिला उद्योग केंद्र होगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होगा, डीसी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस के हिसाब से आ जाएगा। फिर आपको फाइनल सबमिट करना है, ओटीपी डालना है और एक आपको नंबर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, वो नंबर आपको संभाल के रखना है। फिर इसके बाद अगले दिन आप पोर्टल पे जाओगे, ये देखो मैंने सबमिट किया, ये मेरे को नंबर मिल गया। अब जब आप ये नंबर डालोगे पोर्टल में जाके प्रिंट सर्टिफिकेट, तो प्रिंट सर्टिफिकेट में जब आप डालोगे तो एक अपडेट का ऑप्शन आएगा, कुछ डिटेल अगर अपडेट करनी है तो ठीक है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट प्रिंट करके आपके पास आ जाएगा। तो सर ये कुछ चीजें थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सर ये वेबसाइट कौन सी है? udyog-aadhar.gov.in। क्योंकि कुछ लोगों की ये कंप्लेंट आई है कि कुछ प्राइवेट पोर्टल हैं जो फीस चार्ज करते हैं 2000, 2500, 1800 रुपए और वो आ जाते हैं सामने। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, चार्ज करते हैं, बट आप देखना जहाँ पे gov.in लगा हुआ है ना, हाँ जी सर, तो वो गवर्नमेंट की साइट होगी और गवर्नमेंट की साइट में 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब आप लोग अगर बोलो तो लॉ के बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस कर लें कि भाई क्या क्या जरूरी है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो वो 45 दिन वाली आपने बात बोली ना, वो कहाँ लिखा हुआ है, हम अपने क्लाइंट को कैसे बोल पाएंगे। तो सर बिल्कुल मैं आपको जो भी चीज बोल रहा हूँ, आई हैव ओन डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग बेसिस दैट आई एम डिस्कसिंग। तो ये छोटा सा लॉ है, 32 सेक्शन है, जिसके मैंने आपको बताए थे कि 8-10 सेक्शन है जो आपको ध्यान देने हैं, द चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5। Chapter 3 we have already discussed the classification and the application of memorandum, section 8. Now we will be discussing in detail from section 15 to 25, that is delayed payment. अगर आपकी पेमेंट डिले हो रही है तो आपको कैसे डील करना है, we will be discussing. बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 15 जो है ना सर,
जब आपसे कोई पूछे कि कहाँ लिखा हुआ है, तो आप उसको बोलो कि पहले तो भाई जाके तू सेक्शन 15 पढ़ ले MSMED एक्ट का। वहां पे लिखा हुआ है कि बायर जो है उसको पेमेंट करना ही करना है बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर और ऑन द ड्यू डेट जो भी एग्रीड हुई है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम आपस में एग्रीमेंट कर लें कि हम 365 दिन के बाद देंगे, तो क्या ऐसा एग्रीमेंट पॉसिबल होएगा? तो सर एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जो एग्रीमेंट है वो आप करो, बट एग्रीमेंट कैन नॉट एक्सीड 45 डेज। तो 45 दिन के अंदर ही आपने रखना है, उसके आगे आपको नहीं रखना। तो अगर सर मान लो डेट बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे? सर अगर आपकी डेट बढ़ जाती है, आप ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करते हैं, तो ड्यू डेट से डेट ऑफ पेमेंट तक यू विल हैव टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल RBI रेट। 3 गुना, 3 टाइम्स जो बैंक रेट होगा RBI का, उसका आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आप अमाउंट अपना विद इंटरेस्ट रिकवरी कर पाएंगे एज पर सेक्शन 17। तो सेक्शन 15, 16, 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब सेक्शन 18 जो बात करता है, 18 ये बोलता है कि मान लो अगले बंदे ने ना तो प्रिंसिपल दिया ना फिर इंटरेस्ट दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं सर? तब तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो गई, अब तो पैसे ही नहीं मिल रहे। तो सर उस केस में जीएसटी फैसिलिटेशन, जीएसटी कह रहा हूँ, ये MSME फैसिलिटेशन काउंसिल है, जहां की आपका केस भेजा जाता है। ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उनके पास केस भेजा जाता है। वो दोनों लोगों को आपस में बैठा के केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 90 दिन में कोशिश करते हैं कि आपको पेमेंट मिल जाए। और अगर इतने में भी नहीं होगा, ADR के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू भी आपकी पेमेंट नहीं आती, तो फिर लीगल प्रोसेस में आगे मूव कर दिया जाएगा। जैसे सेक्शन 22, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रदर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सर जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो इस सेक्शन के रेफरेंस को जरूर याद रखना। बिकॉज अंडर दिस सेक्शन द रिक्वायरमेंट इज रिलेटेड टू द डिस्क्लोजर। अगर आप MSME, आपका जो क्लाइंट है वो MSME से डील करता है, MSME सप्लायर से डील करता है, और अगर उसने 45 डेज तक अपने सप्लायर की पेमेंट नहीं करी, इन दैट केस आपको अपने बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स हैं उनको 2 कैटेगरी में दिखाना है। एक क्रेडिटर वो जो MSME वाले होंगे, दूसरे अदर देन MSME। आप देखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में ये दोनों कैटेगरी लिख के आ जाती है। और नोट्स में एक चीज और आता है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो दिखाना है, इंटरेस्ट भी दिखाना है, और उस इंटरेस्ट को टोटल इंटरेस्ट में कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ले गया है, वो चीज भी आपको डिस्क्लोजर दिखानी है। फिर इसके बाद सेक्शन 23 बोलता है कि अगर अगले बंदे ने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी या प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं की, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, अगला बोलता है यार बुक में तो चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे मिल जाने हैं उसके, चार्ज कर लो कि फर्क पड़ता है। तो सर काइंडली नोट सेक्शन 23 ऑफ MSMED एक्ट which says you will not get any deduction of the expenditure on account of interest जो कि आपको पे करना है MSME सप्लायर को ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसकी आपने डिडक्शन भी क्लेम नहीं करनी है। और सीए बंधुओं को मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें क्लॉज 22 है। क्लॉज 22 में आपको जाके देखना है, तो वहां पे लिखा है कि इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर कितना है, तो वहां आपको इसका अमाउंट जाके डालना है सर। फिर अगर आप लॉज को कंप्लाई नहीं करते हैं तो सेक्शन 27 है जो कि पीनल प्रोविजन की बात करता है और आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है सर। अब डिस्क्लोजर पे ही आते हैं कि डिस्क्लोजर कहाँ रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो MSMED एक्ट की हमने आपसे बात कर ली। कंपनीज एक्ट की बात करते हैं। तो कंपनीज एक्ट में एक MSME 1 फॉर्म होता है जो कि आपको हाफ ईयरली भरना होता है। एक 31 अक्टूबर को आपको भरना होगा, दूसरा 30 अप्रैल को भरना होगा। हाफ ईयर में आपका जो ड्यूज है कि कितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू है और क्या रीजन है, क्यों डिले हुआ, आपके पास कैश क्रंच है या कुछ और वजह है, आपका डिस्प्यूट चल रहा है, यू विल हैव टू रिपोर्ट द अमाउंट इन द फॉर्म।
कि कितने पार्टीज हैं, कितना अमाउंट है, वो आपको फॉर्म में डिस्क्लोज करना पड़ेगा 2 बार। अब मैं जो आपसे शेड्यूल की बात कर रहा था कि दिखाना है, तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि आप देखो करंट लायबिलिटीज में हम दिखा रहे हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल का नोट नंबर 23 है। इसमें 2 डिटेल आ रही हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यू टू MSME और टोटल आउटस्टैंडिंग अदर देन MSME, दोनों डिटेल आ रही हैं। अब नीचे जो नोट नंबर 23 उसकी और थोड़ा डिटेल है कि प्रिंसिपल कितना ड्यू है, इंटरेस्ट एक्रू कितना हुआ है, पेमेंट कितनी हमने सप्लायर को कर दी है, इंटरेस्ट कितना हमने पे किया है, ये डिटेल भी हमें देनी होती है। देन ऑन द टैक्स ऑडिट पार्ट, कि टैक्स ऑडिट में हमें क्या डिस्क्लोजर देना होता है। तो सर टैक्स ऑडिट में क्लॉज नंबर 22 जो है, वहां पे आपको इंटरेस्ट इन एडमिसिबल कितना है ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट, ये डिटेल आपको देनी ही देनी पड़ेगी जब आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना रहे होते हैं। अब बात आती है कि ये तो चलो रिपोर्टिंग की बात हो गई, तो सीए साहब आपकी कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो सर एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है SA 250, जो कि बोलता है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन in an audit of the financial statement. So in case company is not complying with any law or regulation, then you can qualify the report. आपको क्वालिफाई करना है बेसिस दिस नॉन क्वालिफिकेशन, बेसिस दिस पॉइंट टू SA 250 जो बोलता है कि इस क्लाइंट ने इस लॉ का, MSMED लॉ का जो कंप्लायंस है वो पूरा नहीं किया है। तो सर आपको चेक कैसे करना है, आपके जो MSME के क्रेडिटर डिस्क्लोज किए हैं क्लाइंट ने, आप एक लिस्ट मंगाओ, उनकी एजिंग मंगाओ कि कब से वो पेंडिंग है। दूसरा सर्टिफिकेट्स देखो कि वो एक्चुअली MSME वाले हैं या नहीं है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप चेक करो कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की गई है वो ठीक है या नहीं है। रेट भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो पेमेंट की वो बात करता है तो आप बैंक स्टेटमेंट से भी पेमेंट का चेक कर सकते हैं, प्लस आप अपने क्रेडिटर से कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि वेदर द अमाउंट विच इज डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो सेम एज पर योर सिस्टम और नॉट। लाइक वी आल्सो गेट द एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन द डेटर्स। डेटर में तो हम लेते हैं ना, तो लाइकवाइज ऑडिटर साहब आप क्रेडिटर के केस में भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक पैकेज की, कि सर इकोनॉमिक पैकेज जो हमारा है तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स थे, जिनकी हमने इनिशियली बात की कि 3 लाख करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, बड़े बड़े अमाउंट हैं। तो हम इन पैकेजेस की भी डिस्कशन करेंगे। 4-5 कुछ मेजर स्कीम्स हैं मेरे पास जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटा सा एक रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपको बोल दूं कि considering the pandemic, everybody is facing so much of challenges on account of liquidity and business issues. उनका सप्लाई चेन बंद हो गया था, फंड ब्लॉक हो गया है, डेटर से रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो जो लोग एडवांसेस ले रखे थे, लोन ले रखे थे, तो कहीं ना कहीं उनको रीपेमेंट में इश्यू आ रहा है। तो 2019 में वन टाइम एक स्कीम आई थी, 1 साल के लिए वैलिड थी, जनवरी में आई थी। उस स्कीम को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है और एक्सटेंड करने के बाद एक अभी इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो सर अब आपके पास फिर से टाइम मिल गया है, अगर आपको रिस्ट्रक्चर करना है तो आप फिर से रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जा सकते हैं। दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, दिसंबर तक की एक्सटेंशन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सर आपको मिल गई है। जो लोग MSME में पेमेंट के लिए कहना चाहते हैं कि मुझे पेमेंट कैसे मिले या हम कंप्लेंट कहाँ पे करें, सो दिस इज द साइट विच आई एम प्रेजेंटिंग ऑन माय PPT, MSME समाधान पोर्टल। आपको यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करनी है अपने बिल्स के साथ, अपने इनवॉइसेस के साथ। आप जैसे कंप्लेंट लॉन्च करेंगे तो जो DC होगा आपका रिस्पेक्टिव, उसके पास कंप्लेंट जाएगी और वो रिस्पेक्टिव एक्शन जो रिक्वायर्ड होगा वो एक्शन लेगा। तो अब हम मूव करते हैं स्कीम्स के बारे में। इन 5 स्कीम्स को हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे, हमारे पास आधे घंटे का टाइम है। 3 लाख करोड़ का जो कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट था उसको मैं पहले नहीं ले रहा था, मैंने उसको फिर ले लिया क्योंकि अभी रिसेंट में ही इसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये 31 अक्टूबर तक ही वैलिड थी स्कीम, लेकिन अब इसे 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। सरकार के पास पैसा है, लोग नहीं ले पा रहे हैं।
बैंकर आगे नहीं दे पा रहे हैं, तो फंड जो 3 लाख करोड़ का था वो पूरा नहीं हो पाया, तकरीबन आधा ही पूरा हो पाया, आधा ही पैसा बांट पाया वो, तो इसीलिए 1 महीने के लिए इसे और एक्सटेंड किया गया है। अभी किसी का क्वेश्चन हो अभी तक की प्रेजेंटेशन में, प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। मैं 1 मिनट के लिए फिर से स्क्रीन पे देख रहा हूँ। टू हु प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक रिपेयर ऑल्सो इज एलिजिबल। यस यस, अगर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं नितिन गुप्ता जी, अगर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो एलिजिबल है वो एमएसएमई के लिए। लेकिन अगर सिर्फ ट्रेडर हैं, ट्रेडर मतलब सिर्फ मैंने परचेज किया और आगे सेल कर दिया, देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द आउटपुट, तो उस केस में एमएसएमई एप्लीकेबल नहीं होगा। दे कैन नॉट टेक द एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। यस, एनी अदर क्वेश्चन? नितिन गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन था कि आप कोलेटरल फ्री मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो सर 2 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं। 2 करोड़ तक का सर आपको मिल सकता है। आपके दोनों क्वेश्चन अब हमने जवाब दे दिए। और कोई किसी का सवाल? हमारे भाई बंधु, देखो सर आज मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, सो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। उसके बाद कुछ भी आएगा ना, व्हेन यू विल बी विजिटिंग माय ऑफिस, मे बी अगर आप एज अ क्लाइंट आएंगे, सो आई विल बी चार्जिंग। तो अभी सर गंगा बह रही है, जितना आपको हाथ धुलने हैं सर धुल लो। कोई क्वेश्चन है प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स, या तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। नितिन गुप्ता जी, उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। सो मूविंग ऑन, द फर्स्ट स्कीम जिसे हम लोग बड़े ध्यान से सर पढ़ेंगे आज, 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि लोन लेने के लिए हम पहले जाते हैं, बैंक जो है वो थोड़ा आनाकानी करता है कि ये पेपर नहीं है, ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी ले आओ, ये करो वो करो। बट ये एक ऐसा लोन था कि बैंकर फोन कर रहा था, अरे भाई साहब आपको लोन देना था, कुछ बढ़ा दूं क्या अमाउंट, और आपको बोलना था कि हाँ जी आप बढ़ा दो या नहीं बढ़ाओ। तो पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ था कि आपके पास ऑप्शन था कि लोन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि कोलेटरल फ्री था, आपको खुद कुछ भी नहीं देना, बस हाँ या ना बोलना था। ये एक ऐसी स्कीम थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, ECL इसे बोलते थे, जिसमें बैंक और NBFCs में जहां पे भी आपकी क्रेडिट फैसिलिटी चल रही है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के लिए मैं बात कर रहा हूं, अभी भी 30 नवंबर तक ये है, आप 30 नवंबर तक जाके ले सकते हैं। तो अगर आपका लोन कहीं चल रहा था तो 29 फरवरी 2020 को जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, माइंड इट, विल टेक द फंड बेस्ड लिमिट ओनली, नॉट द नॉन फंड बेस्ड। तो LCPGs की लिमिट को नहीं लेंगे, फंड बेस्ड लिमिट। तो जो आपका फंड बेस्ड फैसिलिटी चल रहा था उसका अप टू 20% आप लोन को ले सकते हैं। जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कैन चार्ज इज 9.25% और NBFC मैक्सिमम 14%। क्योंकि लोन क्या होता है, जब कोलेटरल फ्री लेते हैं आप तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बट हियर देयर इज कैप on the rate of interest, so they cannot charge more than 9.25 and 14%. कोई गारंटी नहीं है, कोई फ्रेश कोलेटरल आपको देने की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी की फीस नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं मांगेगा, बस आपको बोलना है कि मुझे लोन चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा। सेकंड आता है डिस्ट्रेस एसेट फंडिंग। जो ऐसे एसेट्स जो कि डिस्ट्रेस में चल रहे हैं, मतलब स्ट्रेस में चल रहे हैं, NPA हो गए हैं या होने वाले हैं, सब स्टैंडर्ड है, उनको फंडिंग देना बहुत बड़ी बात हो गई। जनरली उनको कोई फंडिंग देता नहीं है। अगर कोई अकाउंट स्ट्रेस में चल रहा है तो उससे तो कोशिश करते हैं कि पैसे निकाले ही लें, सो दैट कि मेरा पैसा जितना कम से कम फंसा रहे उतना बेहतर है। अगर किसी की एक इंस्टॉलमेंट नहीं जाती या एक किसी मंथ का उसने अगर इंटरेस्ट को सर्विस नहीं किया तो बैंकर फोन करना लग जाता है
कि अरे सर आपका तो पिछले महीने का ही पूरा नहीं हुआ, दूसरा महीना खत्म होने वाला है, कब पे करोगे? But now here government has created a provision of 20,000 crore to support the distressed MSMEs and businessmen in the name of subordinate debt scheme. So in this category, stressed SME actually need some economic support in the form of equity and the debt as well. So here Government of India will create a provision of 20,000 crore as a debt, where they have estimated कि 2 लाख से ज्यादा जो SMEs हैं, स्ट्रेस्ड SMEs हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। अब ये एक ऐसे SMEs को बेनिफिट दिया जा रहा है जो कि या तो स्ट्रेस में है या NPA में है। तो अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आपका कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ये स्कीम आपको नहीं मिलने वाली है। तो ऐसा भी सर मत करना कि पहले आप NPA बन जाओ फिर स्कीम लेने के चक्कर में पढ़ के पहले आप NPA कर लो अपने अकाउंट को। सर एक बार NPA होने के बाद और बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं। तो अगर आपको एक्चुअली जरूरत नहीं है, सो डोंट ट्राई दिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेपरेटली क्रिएटेड 4,000 करोड़ का CGT MSE। वहां पे 4,000 करोड़ का जो क्रेडिट सपोर्ट है वो बैंकर्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया जाएगा। हु विल गिव एंड हु विल सपोर्ट द SME ऑन दिस फैसिलिटी? सो यहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया था, जो प्रमोटर्स हैं, द फंड विल बी गिवन टू द प्रमोटर्स, देन प्रमोटर विल इन्फ्यूज दैट फंड टू द बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो NPA चला गया, तो अब NPA को लोन तो देंगे नहीं, तो कैसे होगा सर? तो प्रमोटर को देंगे, प्रमोटर अपने बिजनेस में लगाएगा, तो वो NPA से अकाउंट बाहर आ जाएगा। ठीक है सर। इसमें नेचर ऑफ असिस्टेंस में बोला गया कि कितनी गारंटी देंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 85% तक का जो कवरेज है, अगर आपको 5 लाख से कम का लोन है तो 85% सिक्योरिटी देगा, और अगर 5 से ऊपर है तो आपको 75% का जो क्रेडिट सपोर्ट है, कोलेटरल सपोर्ट है, गारंटी सपोर्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं? जो फंक्शनिंग MSME है। ध्यान देना आप, सर मैं MSME बोल रहा हूं, तो आपका MSME होना प्लस NPA या स्ट्रेस्ड होना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। ये 2 कैटेगरी आप जब फॉलो करेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कौन करेगा? प्रमोटर आपको अप्लाई करेंगे। बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले पूरी की जाएगी बैंक में, इसके बाद जो प्रमोटर्स हैं उनको लोन दिया जाएगा। लाइकवाइज इक्विटी इन्फ्यूजन है, 50,000 करोड़ का प्रोविजन यहाँ पे भी क्रिएट किया गया है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, एक सर्वे था जिस सर्वे में बताया गया कि तकरीबन 35% जो स्टार्टअप्स हैं वो नॉन फंडिंग की वजह से फेल होते हैं। उनके पास प्रॉपर फंड और टाइमली फंड नहीं मिल पाता। They try some NBFC, they try some private banker, and they suffer with huge rate of interest. When we don't have collateral, banker or the financial institutions will charge जितना उनका दिल करता है उतना वो चार्ज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास तो सपोर्ट नहीं है और हमारी मजबूरी है। तो मजबूरी में तो हमें कुछ भी मानना पड़ेगा, अगला बंदा बोल देगा नहीं देंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें वो लेनी पड़ती है फैसिलिटी, इसीलिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं। तो सरकार ने बोला कि जो MSME है, यहाँ पे बोला कि ऑल SMEs आर एलिजिबल फॉर द फंडिंग। इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका पहले प्रोजेक्ट चेक करेगी। अगर आपका प्रोजेक्ट वाइबल है, प्रोजेक्ट में दम है, सस्टेनेबल है, आगे चलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो आपके बिजनेस में फंडिंग किया जाएगा। अब कुछ स्कीम है, जैसे छोटे छोटे जो लोन है वो हम कैसे ले सकते हैं जिसमें ज्यादा मचमच नहीं है, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। जैसा कि पहली स्कीम इसमें है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। काफी पहले आई थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए तो बहुत पॉपुलर है, सिक्योरिटी की क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती है।
ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। ये ट्रेडर्स के लिए भी है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी है, सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए भी है, और कोई भी एक्टिविटी चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फार्मिंग से रिलेटेड है, हर क्षेत्र का बंदा इस स्कीम में फॉल करता है और इस स्कीम का फायदा वो ले सकता है। बोरोवर की एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल बोरोवर भी एलिजिबल है, चाहे वो प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो भी एलिजिबल है, पार्टनरशिप फर्म है तो भी एलिजिबल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी एलिजिबल है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, कोई और भी अदर फॉर्म है, सो ऑल आर एलिजिबल बोरोवर्स। You have to go for with the banker, NBFC, MFI, आप इनके पास जाएंगे और आराम से आपको लोन मिलेगा। लोन में सर क्या क्या मिल सकता है? इधर यू विल गेट टर्म लोन और ओडी ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं, या आपको थोड़ा सा टर्म लोन चाहिए, थोड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए, सो यू कैन गेट कंपोजिट लिमिट। इसमें 3 कैटेगरी है सर। पहले सबसे छोटा बिजनेसमैन, छोटा बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं? शिशु। अभी तो शिशु में 2% का इंटरेस्ट वेवर भी आ गया कि उनको हम इंटरेस्ट वेव करेंगे 1 साल के लिए। छोटा बिजनेसमैन अप टू 50,000 तक सर आपको लोन चाहिए, कोई सिक्योरिटी कुछ भी जरूरत नहीं, आप लोन ले लो। अब थोड़ा और बढ़ता है बिजनेस, थोड़ा और बड़ा करते हैं तो 5 लाख तक चाहिए, तो 5 लाख तक जो है उसको बोलते हैं किशोर, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा बच्चा और ज्यादा बड़ा हो गया, अब अपनी एज लिमिट को पहुंच गया है वो, उसे बोलते हैं तरुण, युवक बन गया है, व्यापारी बन गया है, उसे 10 लाख तक का लोन चाहिए। तो 5 लाख से 10 लाख तक की कैटेगरी तरुण में, 50,000 से लेके 5 लाख तक किशोर में, और 50,000 तक का शिशु में। तो 10 लाख तक का लोन आपको लेना है, अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेना है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो मुद्रा लोन से बेहतर सर कोई और नहीं होगा। इधर यू वांट टू स्टार्ट योर ओन स्वीट शॉप, या फिर सैलून, बड़ा पार्लर स्टार्ट करना चाहें, या ऑटो रिक्शा का बिजनेस करना चाहें, या कोई भी, जैसे यहाँ पे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप है या टेलरिंग शॉप है, किसी भी तरीके का आप छोटा मोटा बिजनेस करना चाहें, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस तो 10 लाख में नहीं होगा ना, यही सारे हो पाएंगे। तो इस तरह के बिजनेस आप 10 लाख तक का अमाउंट लेके कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, मार्जिन जो बैंक का मार्जिन उनकी टर्म्स के हिसाब से रहेगा, वही आपसे चार्ज करेंगे। प्रोसेसिंग फीस इशू में तो बिल्कुल नहीं है, बाकी के केस में बैंक की अपनी सिक्योरिटी जो है वो लगेगी, और बैंक की अपनी जो प्रोसेसिंग फीस है वो बेसिक चार्ज किया जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा। रीपेमेंट जो टर्म लोन है उसकी तो हम EMI पे करते हैं, आप सबको पता ही है, जो भी हमारा टेन्योर फिक्स होगा, 2 साल, 1 साल, 3 साल। OTCC 1 साल के लिए रिपेबल होता है, ऑन डिमांड रिपेबल होता है, तो 1 साल के बाद आप चाहें तो या तो रीपे कर दें, या तो आप चाहें तो उसको रिन्यू करा के आगे और बढ़ा सकते हैं। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट सी स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो एक बार मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्या किसी को इस स्कीम के बारे में कुछ पता है? प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, किसी को भी इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा भी अगर पता है, प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। सर मजा तभी आएगा ना जब अगर आपको ज्यादा नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा। तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए। आरके सर जरूर, मैं भी सब्सक्राइब करूंगा चैनल को, डेफिनेटली आई विल डू। 67 पार्टिसिपेंट्स है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बहुत बुरी आदत होती है, हम इंटरेक्ट नहीं करते, और फिर हम ये बोलते हैं कि MBA वाले हमसे आगे निकल गए, या वकील साहब हमसे आगे निकल गए। सर वकील साहब बहुत बोलते हैं इसलिए आगे निकल जाते हैं, MBA साहब अच्छा पहनते हैं, अच्छा दिखाते हैं, इसलिए आगे निकल जाते हैं। सर हम बिग 4 को और बड़ी जो फर्म्स हैं उनको, उनके लिए बोलते हैं ना कि वो सारा बिजनेस खा जाते हैं। सर उसकी वजह यही है कि जो दिखता है वो बिकता है। द मोमेंट व्हेन यू विल स्टार्ट शोइंग अप, आपको गलत नहीं दिखाना,
जो आपके अंदर है वो तो दिखाओ सर, आपसे अच्छा ज्ञानी कौन हो सकता है? आप जितने लॉ की जानकारी आपको है, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी और को होगी। जितनी सब्जेक्ट आप पढ़ के सीए बने हैं, मुझे नहीं लगता कोई और जानता होगा। सिर्फ जो झिझक है ना इंटरेक्ट करने की, स्टडी सर्कल्स में भी स्पीकर आते हैं, बोल के चले जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन किसी ने कर लिया। सर जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक स्पीकर का जो मोमेंटम है वो अच्छा नहीं बनता। जब आप इंटरेक्ट करेंगे 4 चीजें और खुल के आएंगी, 4 चीजें और आप जानोगे। हो सकता है मेरे पीछे कुछ सेशन ऐसे हुए कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा आइडिया लगा, मैंने सेशन के दौरान उनको गाइड कर दिया और उनका अच्छा बिजनेस चालू हो गया, उनको फंडिंग भी मिल गई। कई सारे और प्रोग्राम्स में दूसरे सेक्टर की बात हो रही थी, उनको वहां पर भी फायदा हुआ। तो हर सेशन में किसी ने, चाहे मैं हूं या कोई और स्पीकर है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा देके जाते हैं। बट द थिंग इज यू विल हैव टू इंटरेक्ट। मैं तो आर के सर से इतना कुछ सीखता हूँ, उनसे अच्छा तो कोई इंटरेक्ट ही नहीं करता। कोई भी टॉपिक आप दुनिया का लेके आओ, चाहे वो आईबीसी का हो, चाहे वैल्यूएशन हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे जीएसटी हो, सर जो है वो किताबों की खान है। हर तरह का नॉलेज है सर के, वहां से जरूर क्वेश्चन आएंगे, सर का इंटरेक्शन होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब इंटरेक्ट कीजिए किसी के साथ भी। अपने क्लाइंट के साथ आप जितना अच्छा इंटरेक्ट करेंगे ना, उतना ही आपकी वो बढ़ाई करेगा आगे जाके। So try to interact as much as possible. प्रियंका जी, मैंने आपको जवाब दे दिया है पहले ही, अगर आपने नहीं सुना फिर बोल देता हूं कि ट्रेडर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते एमएसएमई में, जस्ट बिकॉज जो मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था 2017 में, उसने एक लिमिट लगा दी है, उसने ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव लिस्ट क्रिएट कर दी है। तो चलिए अब हम PMEGP जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सर पहले रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए 2 अलग अलग स्कीम हुआ करती थी, लेकिन फिर इसके बाद इन दोनों स्कीम को मर्ज करके और एक स्कीम बनाएगी जो कि आज हम सब देख रहे हैं, PMEGP। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सर ये। इसको एडमिनिस्टर करने के लिए MSME तो है ही, साथ में जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, KVIC, वो स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसे जो रेगुलेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। स्टेट लेवल में इनके बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, KVIBs हैं और DIC हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जो कि जो वहाँ के SMEs होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनको अवेयरनेस भी देते हैं और उनको गाइड करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कैसे आपको लोन मिलेगा। ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है आपके सामने है कि इस स्कीम में आपको सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी फ्री होती है, और फ्री जहां मिलता है वहां दुनिया जाती है। तो सर इस स्कीम में कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी, ये 2 कैटेगरी सेपरेट है। इधर यू बिलोंग टू द अर्बन एरिया और द रूरल एरिया। आप बहन जी हैं या भाई साहब हैं, मतलब भाभी जी हैं या भाई साहब हैं। तो अगर भाभी जी हैं और भाभी जी गांव में रहती हैं, गांव में बिजनेस करना चाहती हैं, तो मैक्सिमम 35%, 35% की सब्सिडी सर मिल जाएगी। लेकिन अगर भाभी जी नहीं है, भाई साहब हैं, तो भाई साहब को 25% ही मिलेगी अगर गांव में करना चाहें। लेकिन अगर गांव में ना करके शहर में करना चाहें, दिल्ली में इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे, तो वही सब्सिडी जो है वो कम हो जाएगी। भाई साहब जो है वो 15% की कैटेगरी में आ जाएंगे और जो भाभी जी हैं वो 25% की कैटेगरी में आ जाएंगे अर्बन एरिया में। अब भाई साहब और भाभी जी तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोला, इसमें 2 कैटेगरी, एक जनरल कैटेगरी और दूसरा बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी। तो एक स्पेशल कैटेगरी है, उसे डिफाइन किया गया है, उस स्पेशल कैटेगरी के अलावा जो बचा वो सारी जनरल कैटेगरी। तो स्पेशल कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, या तो आप ST, SC, OBC हो, या फिर जैसे मैंने बोला भाभी जी हो, या एक्स सर्विसमैन हो, माइनॉरिटी हैं, या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, अगर आप हैंडीकैप हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैं, हिली एरिया या बॉर्डर एरिया से हैं। So these all will be covered under the special category and rest of the category will be called as general category. अब बात ये करते हैं कि सर मुझे पैसे कितने भी लगाने होंगे और सरकार को कितना लगाना होगा, मतलब सरकार का मतलब जो लोन है, लोन कितना मिल जाएगा।
तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो एटलीस्ट 10% you will have to contribute at your business, because the tendency is if I'm not putting my money to my business, then I would be very liberal and I would not take so much of responsibility and the risk. क्योंकि पैसे गए तो दूसरे के हैं, मेरे कौन से हैं। बट अगर आपके पैसे खुद के भी लगे होते हैं तो आपको लगेगा यार पैसे डूबेगा तो मेरा भी डूबेगा, तो इसीलिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी 10% का डालना है। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, so the contribution would be only 5%, rest 95% amount will be financed by the banker or the financial institution. So here we have two limit, one for service sector and another for manufacturing sector. So manufacturing sector maximum limit is 25 lakh, 50 लाख की जो 25 लाख का जो लोन अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप सर्विस सेक्टर के हैं तो 10 लाख का भी। तो अगर रिपेयर मेंटेनेंस या सर्विस से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड कुछ आप शुरू करना चाहते हैं सर, तो 10 लाख तक की आपको यहाँ पे लोन अमाउंट मिल सकती है। इसमें कुछ कैटेगरी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है वो तभी लोन ले सकता है जब वो 18 साल से ऊपर हो, क्योंकि सर आपको एग्रीमेंट भी साइन करने पड़ेंगे। आप एलिजिबल 18 साल के हो जाओगे तभी तो कर पाओगे। हाँ, लेकिन पीछे आपका इनकम सोर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इफ यू आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। फिर इसके बाद इसमें एक ईडीपी की ट्रेनिंग भी होती है। तो अगर आपकी 5 लाख तक का आपका लोन है तो आपको 5 दिन की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और अगर आपका 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो आपको 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग इनके सेंटर्स पे होती है, वो ट्रेनिंग आप लेंगे, वो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कराएंगे। केवीआईसी की साइट पे जाके लोन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, then you will have to give the certificate that yes I have done the course of certification of EDP training। फिर इसमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई जैसे इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ये लोग भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एनजीओ हैं, ये भी एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। अब बात ये आती है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं क्या वो भी लोन ले सकती हैं? तो सर अगर आपका लोन अभी रनिंग में है, चल रहा है, तो नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आपका लोन रीपे हो गया है, खत्म हो गया है, तो आप लोन ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपको लोन की कॉस्ट निकालनी है उसमें लैंड की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपको कॉस्ट नहीं डालनी है, ये सर आपको ध्यान रखना है। लैंड की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना। जब आप अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाएंगे जो 25 लाख का मैंने आपको बताया या 10 लाख का है, उसमें लैंड की कॉस्ट को आपको इंक्लूड नहीं करना। वो तो सर आपको अपने से अरेंज करना पड़ेगा, या तो आप लीज में लो या तो आपकी अपनी लैंड होनी चाहिए। प्रेफरेबली आपकी अपनी लैंड होगी तो थोड़ा सा आप बेटर सिक्योर्ड रहेंगे, रेगुलर जो फिक्स कॉस्ट है उससे आप बच पाएंगे और आप अपने बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे। फिर इसके बाद एक परिवार में एक पर्सन ही एलिजिबल है इस स्कीम में लोन लेने के लिए। फैमिली इंक्लूड्स सेल्फ एंड स्पाउस, मतलब मैं अपने परिवार में, मैं और मेरी वाइफ दोनों सेपरेट लोन नहीं ले सकते। मतलब अगर मैंने ले लिया तो मेरी वाइफ इनएलिजिबल, मेरी वाइफ ने ले लिया तो मैं फिर एलिजिबल नहीं रहूंगा। कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, सिडबी है, ये सारे लोन आपको देंगे। इसकी हमने बात कर ली कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी कितनी है, कितना आपको देना है, ये मैंने आपको बता दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर वही चार्ज किया जाएगा। रीपेमेंट शेड्यूल की आप बात करेंगे तो 3 से 7 साल आपको मिलता है। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी सर आपको नहीं देनी होती है, आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, थर्ड पार्टी गारंटी की भी जरूरत नहीं है। ईडीपी ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया सर। हाँ, एक ये भी आपको बता दूं कि जब आप लोन के लिए जाते हैं तो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, क्योंकि दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द प्रोजेक्ट विच यू आर प्रेजेंटिंग यू हैव एक्चुअली एनी एक्सपीरियंस और नॉट, उस फील्ड का आपको अनुभव भी है या नहीं, या फिर आप ब्लाइंडली बस कुछ भी आगे प्रोजेक्ट उठा के कि बस पैसे मिल जाए बात खत्म। तो अगर आपका अनुभव होगा, आपकी लगन शक्ति है, डेडिकेशन है कि आप अच्छे से उसको कर पाएंगे, तो आपको वो लोन देंगे, नहीं तो ये केवीआईसी वाले आपको अप्रूव नहीं करेंगे।
अच्छा, इसमें कुछ निगेटिव लिस्ट भी है कि जो कैटेगरी अभी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस कैटेगरी में अगर आपका लोन प्रोजेक्ट फॉल करता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इन चीजों के लिए, जैसे इंटॉक्सिकेंट आइटम है, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, इसकी फैक्ट्री आप लगाना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और बिजनेस इंडस्ट्री लिंक विथ, अगर आपका सेरिकल्चर, कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर इनसे रिलेटेड है तो वहां पे भी आपको इस स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके लिए दूसरी स्कीम है जहाँ पे आपको फ्लोरिकल्चर वगैरह में, हॉर्टिकल्चर में दूसरे स्कीम में बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अब हम लास्ट स्कीम की बात करेंगे 5 मिनट के लिए, CGTMSE। यहाँ पे भी आपको 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। तो सर 2 करोड़ तक का आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं। नितिन गुप्ता जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपने पूछा था, तो आपके लिए सर ये स्कीम है, पेशे खिदमत है। तो सर देखो, CGTMSE इसीलिए है कि एक बड़ा अमाउंट आपको बिजनेस के लिए मिल जाए, बड़ा इंडस्ट्री आपको लगाना है तो टाइमली अवेलेबिलिटी हो जाए, इसीलिए ये स्कीम लाई गई थी। इनिशियल जनरली क्या होता है कि हाई रिस्क परसेप्शन है कि नया बंदा है, नया बिजनेस शुरू कर रहा है, चलेगा भी या नहीं चलेगा, और 2 करोड़ का अमाउंट अगर इसको हमने दे दिया और बिजनेस डूब गया तब तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कई रिस्क भी होता है, बट यस, अगर आपके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना के देते हैं बैंकर को, तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर वाइबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है कि आगे बिजनेस चलेगा, तो आपको इजीली लोन मिल जाता है सर। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, तो जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है और सिलेक्टेड कुछ नाबार्ड के सिलेक्टेड कुछ RRBs हैं, वो आपको यहाँ पे लोन देंगे। अब ये जो लोन की फैसिलिटी है, यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल भी मिल सकता है, टर्म लोन भी मिल सकता है, दोनों का कंपोजिशन भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट विच यू पुट बिफोर द बैंकर। अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक का आपको लोन मिलेगा। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। सुनहरा अवसर है सर, कोलेटरल जहाँ पे नहीं देना, समझ लो आपको कितना आराम मिल गया। तो कोलेटरल आपको देने की जरूरत नहीं है, थर्ड पार्टी गारंटी की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है, आपको इजीली मिलेगा। अब सर कुछ लोग पूछते हैं कि ये एग्जिस्टिंग को ही मिलेगा या नए बिजनेस को भी मिलेगा, तो सर एग्जिस्टिंग और नए दोनों को ही ये लोन मिल सकता है। आप पुराने हैं तो भी मिल जाएगा आपको, नए बिजनेसमैन है तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा। फिर इसके बाद गारंटी कवर, जैसे पुरानी दूसरी स्कीम में भी मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका 5 लाख तक का लोन है तो आपको 85% जो कवर है वो यहाँ पे मिल जाएगा CGTMSE ट्रस्ट से। वहीं अगर इससे बड़ा आपका अमाउंट है, 75% तक आपका जो कवर है वो 50 लाख तक के लिए आपको मिलेगा, और इससे जो ऊपर है तो फ्लैट 50% का कवर आपको सिक्योरिटी का मिल जाएगा। CGTMSE ट्रस्ट क्रिएट किया गया सिक्योरिटी देने के लिए बैंकर को। तो आप पहले लोन के लिए जाते हैं, बेसिक क्राइटेरिया आपका चेक किया जाता है, सिविल चेक करेंगे, ITR चेक करेंगे, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक करेंगे, जो प्रमोटर है उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे। तो जब ये सारी डिटेल चेक कर लेते हैं और आपको सैंक्शन कर देते हैं, इसके बाद बैंकर CGTMSE में अप्लाई करता है कि हमने इस स्कीम में इतना अमाउंट सैंक्शन किया है, इतना परसेंट सिक्योरिटी के लिए मैं एलिजिबल हूँ, और उतने परसेंट वो सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब जो ये टर्म लोन है, तो अगर आप टर्म लोन लेंगे, जो ये गारंटी की अगर बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल के लिए 5 साल तक की आपको गारंटी दी जाती है। टर्म लोन में तो जितना टर्म लोन का एग्रीड पीरियड होगा उतने पीरियड के लिए गारंटी दी जाएगी, क्योंकि बीच में गारंटी को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो सर दिस वाज अ लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल अगले 5-7 मिनट में आप मुझसे क्वेश्चन 10 मिनट में पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके कोई सवाल हो सर। मैंने कोशिश किया है कि एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपको स्कीम्स का दे दूं। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माई कॉन्टेक्ट डिटेल आउट हियर। यूट्यूब चैनल है सर मेरा, आप वहां पे भी जाके किसी स्पेसिफिक स्कीम में आपको कुछ अगर जानकारी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपको सवाल हो तो आप RK गुप्ता सर को या भारद्वाज सर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी मेल ID आप देख सकते हैं, वहां पे भी आप मुझे लिखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंस्टेंट तो नहीं बट डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कोई सवाल है तो मैं भी सवाल लेने के लिए
हूँ यहाँ पे, आप अपने सवाल डाल सकते हैं सर। यस, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? मैं सर चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताएं। ऐसा है अनुरुद्ध जी, आज बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही अच्छा दिन है। हमारे हंसराज चुग जी है ना, उनका जन्मदिन है आज। अरे वाह वाह, तो बिल्कुल मैंने आज बिल्कुल। उनसे रिक्वेस्ट किया था हंसराज जी को हाँ, कि आप भी जी 2 मिनट के लिए आ अच्छा जाइएगा, अच्छा, क्योंकि क्या है, कोविड का मौका चल रहा है, तो क्या है, पर्सनल मीटिंग्स तो हो नहीं पा रही हैं, सही बात है, सही बात तो है। इसी बहाने इंटरेक्शन भी हो जाएगा। जी जी तो मैं हंसराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। तो अनिरुद्ध जी का जो है मैं रियली आई अप्रिशिएट कि इन्होंने काफी अच्छे तरीके से और बड़े ही साधारण तरीके से जो है अपने जो भी ज्ञान की बातें करी। आई रियली अप्रिशिएट हिम। तो एंड आई थिंक गुप्ता जी, एटलीस्ट मेरे को लगता है कि शायद 50 लेक्चर तो दे चुके होंगे एमएसएमई पर अनुरुद्ध जी। हाँ सर, ज्यादा ही हो गए। हाँ, जी मिनिमम जी बता रहा हूँ, 50 तो देंगे। जी जी। तो गुप्ता जी, भारद्वाज जी एंड सभी हमारे जो मित्र लोग जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ हमारे कई दोस्तों ने जो स्क्रीन पे या हमारे से जो है अपनी विशेष शेयर की हैं, कुछ ने प्राइवेटली और कुछ ने टू एवरीवन। तो आई कैन सी नंबर ऑफ विशेज कि मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और सभी जो मित्र लोग हमारे हमेशा बेसिकली इट्स अ जर्नी विच हैज बीन स्टार्टेड लॉन्ग बैक। गुप्ता जी के साथ जब हमारा 2003 के अंदर जो है या जब ये पहला सेमिनार या पहला इसका शुरुआत हुई थी स्टडी सर्किल की, तभी से मैं इसकी ग्रोथ और गुप्ता जी के जो डेडिकेशन और पूरी टीम का, भारद्वाज जी का, सुनील का, सबके डेडिकेशन को देखता हूँ कि प्रोफेशन के लिए नई से नई चीजें, इट इज नॉट कि भाई कंटेम्परेरी चीजें जो हर किसी तरीके से सब लोग समझ सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें हमारे मेंबर्स के लिए, उनके जो नॉलेज शेयरिंग के लिए और उनकी जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं। और वो उसके अलावा जो उनकी पर्सनल जो सब लोगों के साथ इतने जुड़ाव हैं, जैसे हमारे साथ भी उनका रिलेशनशिप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतनी गहराइयों तक पहुंच गया। Again, thank you all and wish you all a very happy Diwali and very happy days ahead. Thank you very much. तो मेरी तरफ से भी सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू। परमात्मा जो है ये दिवाली के मौके पे जो है हम सबको जो है यू सी लाइक प्रॉस्पेरिटी और जो है जो एक हेल्थ, आजकल जो है चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, हेल्थ और आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है परमात्मा से रिक्वेस्ट गुजारिश करूंगा कि आप सब और जो हमारे साथी लोग हैं हमें सबको सुदृढ़ बनाए और क्षमताएं पैदा करें, तो जिससे हम इन चैलेंजेस को भी जो है सरपास कर सकें। Over Thank you, to sir. Thank you. So, with Bhardwaj ji this, for concluding remarks. Anirudh ji, with your kind permission, we would like to upload the recording of this lecture on our YouTube channel. नो So we want प्रॉब्लम your सर। permission, sir. अरे सर, परमिशन की कोई जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल आप बिल्कुल अपलोड कीजिए, अपने भाई, प्रोफेशनल में भी फायदा हो, बिल्कुल आई एम ऑलवेज देयर। बहुत अच्छा लगा आपका। इट वाज ए वेरी, हम शायद हमने पहली बार आपको बुलाया अपने स्टडी सर्कल में, जी जी सर। बट इट वाज ए वंडरफुल इंटरेक्शन। मेंबर्स आर हाईली एनलाइटेंड। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक एक लाइन बहुत अच्छी तरह समझ आई। वी आर हाईली थैंकफुल टू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर गाइडिंग आवर मेंबर्स। थैंक यू सो मच सर। हमारे भाई हंसराज चुग जी, आवर एल्डर ब्रदर, उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई जन्मदिन वाले दिन, हम लोगों को बड़ी खुशी हुई। अदरवाइज वर्चुअली हम लोग सुबह से तसल्ली कर रहे थे सर। भगवान करे आप दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें हमेशा, और ये मिशन आपका हमारा साथ ऐसे ही चलता रहे, ऐसी हमारी सबकी कामनाएं हैं। I am also thankful to all the members for presenting in such large numbers and making this event a wonderful success. Thank you everybody, and all of you, wish you a very very happy Diwali from the study circle. Thank you once again for giving your presence.